Hello dear children, welcome back to your MSc online class. This is your lesson 5, Value Dignity of Labor, and the story is The Vada Pav Vendor. In my last video I taught you about value dignity of labor. Today we are going to learn the story related to the value dignity of labor, and the name of the story is The Vada Pav Vendor. The Vada Pav Vendor. Tarun worked in an office in Mumbai. His office was at Nariman Point while he lived in Kandivali. It was quite far away. Mumbai was an expensive city. Although Tarun earned a reasonable salary, still he had no savings in the bank. बच्चों, तरुण मुंबई में एक ऑफिस में काम करता है. उसका ऑफिस नरिमन पॉइंट में था, जबकि वह कांदिवली में रहता था या काफ़ी दूर था. मुंबई एक व्यापक शहर है. तरुण को ठीक ठाक सैलरी मिलती थी, लेकिन फिर भी उसकी बैंक में कोई भी सेविंग नहीं थी. Recently his father had come from the village. He was diagnosed with stones in his gallbladder and he had to be operated soon. Tarun had no money for operation, so he asked his boss for a loan which was immediately rejected. हाल ही में उनके पिता गांव से आए. उनके गॉल ब्लैडर में पथरी का पता चला था और जल्द ही उनका ऑपरेशन होना था. तरुण के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने बॉस से लोन मांगा, जिसे बॉस ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया था. Tarun was going home early today to take his father for the checkup. Normally, Tarun travelled by his motorcycle, but due to excessive rains and water logging, he decided to travel by Mumbai local train today. This way, he also saved money on petrol. तरुण अपने पिता का चेकअप करवाने के लिए घर जाने वाला था. आमतौर पर तरुण अपनी मोटरसाइकिल से आना जाना करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और जल जमाव के कारण उन्होंने आज मुंबई लोकल ट्रेन से जाने का फैसला किया. इस तरह से उसके पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे, ये उसने सोचा. As the train was about to leave the station, a vendor with an almost empty basket got on the train. He looked tired and sweaty. He took the seat next to Tarun. Looking at his dirty clothes, Tarun shifted to one side. "What is the time, sir?" asked the man. अब ट्रेन स्टेशन से निकलने ही वाली थी. लगभग खाली टोकरी वाला एक वेंडर ट्रेन में चढ़ गया. वह बहुत थका और पसीने से तर दिख रहा था. वेंडर ने तरुण के बगल वाली सीट ले ली. उसके गंदे कपड़े को देखते ही तरुण एक ओर हट गया. तभी वेंडर ने भी तरुण से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है. Tarun did not want to answer, but it was a harmless question and Tarun could not ignore the man sitting right next to him. "It's 4 o'clock, he replied. "This rain is good for my business." The man smiled and started searching for something in his basket. Curious, Tarun decided to ask him, "What is your business?" By now, the man had fished out a packet of vada pavs from the bottom of the basket. वेंडर ने जब तरुण से टाइम पूछा, तब तरुण जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन यह एक हार्मलेस क्वेश्चन था और तरुण उसके ठीक बगल में बैठा था, तो वो उसको इग्नोर नहीं कर पाया और उसने जवाब दिया कि 4 बज चुके हैं. तभी वेंडर कहने लगा, "यह बारिश मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है." और वो मुस्कुराया और अपनी टोकरी में कुछ खोजने लगा. तरुण ने डिसाइड किया कि वो उससे पूछेगा कि उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है. तब तक वो आदमी
अपनी टोकरी नीचे से एक पैकेट वड़ा पाव का निकालता है। I sell vada pav, sir. When people are stuck in the rain, they have no choice but to buy vada pav to subside their hunger. Do you want one? The man asked Tarun. The smell of vada pav made Tarun hungry. He remembered he had not eaten lunch today. He nodded. The man handed him a vada pav packet in cellophane. How much? asked Tarun. 10 rupees, sir, the vada pav vendor said. मैं वड़ा पाव बेचता हूँ। जब लोग बारिश में फंस जाते हैं तो उनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए वड़ा पाव खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। क्या आप एक लेना चाहते हो? आदमी ने तरुण से पूछा। वड़ा पाव की महक ने तरुण की और भूख बढ़ा दी थी और उसे याद भी आया कि आज उसने लंच में कुछ भी नहीं खाया था। आदमी ने उसे एक पैकेट वड़ा पाव का दे दिया। तरुण वेंडर से पूछता है कि वड़ा पाव कितने का है, कितने रुपए का है, और वेंडर उसे बताते हैं वो 10 रुपीस का है। तरुण paid the man and started eating vada pav. He had to admit it was delicious. Still, he was in no mood to make a conversation with that dirty ragged fellow. So he picked up his small mobile and started reading the messages. Just then the vada pav vendor's phone started ringing. He fished out a smartphone from his inner pocket and spoke to someone in Marathi. He has a smartphone, must have hitched from someone, thought Tarun. तरुण ने वड़ा पाव वेंडर को पे किया और उसने वड़ा पाव खाना शुरू किया। जैसे उसने वड़ा पाव खाया उसे लगा कि वाकई में वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी है। उसका वड़ा पाव वेंडर के साथ बात करने का कोई भी मूड नहीं था। उसका मन उसके साथ बात करने का बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसने अपना छोटा सा एक फ़ोन निकाला और उसमें मैसेजेस को पढ़ने लगा। तभी वेंडर का फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से स्मार्टफ़ोन निकाला और किसी से मराठी में बात करने लगा। जैसे ही तरुण ने वेंडर का स्मार्टफ़ोन देखा वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो सोचने लगा कि ज़रूर इसने किसी का फ़ोन लिया है, वरना इसके पास स्मार्टफ़ोन कहाँ से आएगा। The compartment was sparsely occupied and Tarun's destination was still far away. So out of curiosity, he got into a conversation with the vada pav vendor. Is this your phone? asked Tarun. Yes, sir. I bought it last year. The man replied simply. अब जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का वो लगभग खाली हो गया था और तरुण को जहाँ जाना था वो अभी काफ़ी दूर था। उसको मन था कि वो जो फ़ोन है वेंडर के पास वो उसका है या नहीं। इसलिए उसने क्या किया, उससे पूछा इज़ दिस योर फ़ोन सॉरी उसने पूछा कि ये तुम्हारा फ़ोन है तरुण से। यस सर, आई बॉट इट लास्ट ईयर, द मैन रिप्लाइड सिंपली। जो वेंडर था उसने कहा ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसको लास्ट ईयर खरीदा है। इट सीम्स लाइक यू हैव सोल्ड ऑल योर वड़ा पाव्स टुडे। तरुण कंटिन्यूड द कॉन्वर्सेशंस। अब वो जो तरुण है वो उससे लगातार बात करना चाह रहा था, इसलिए वो उससे कह रहा था कि लगता है आज तुमने सारे वड़ा पाव सोल्ड कर दिए हैं। द वड़ा पाव वेंडर स्माइल्ड, यस सर, by God's grace today also all my vada pavs have finished. Only these two are left now. अब जो वड़ा पाव वेंडर्स हैं उसने स्माइल करके कहा यस सर, आज भगवान की कृपा से मेरे सारे वड़ा पाव्स जो हैं वो फिनिश्ड हो गए हैं और सिर्फ ये 2 ही मेरे पास बचे हैं। Before he could stop, Tarun found himself saying, I really feel sorry for you people.
Don't you get tired doing this tiresome job the whole day? What to do, sir? But selling vada pav is the only thing I know. I get a commission of ₹2 for each vada pav that I sell. The man replied innocently. अब जो तरुण है, तरुण उनके लिए, जैसे उनके तरह जो लोग होते हैं उनके लिए सॉरी फील कर रहा था और उससे पूछने लगा, क्या तुम थकते नहीं हो सारा दिन ये काम करके? तो जो वेंडर है, वेंडर उससे कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, मुझे वड़ा पाव बेचने के अलावा और कोई काम नहीं आता है और मुझे इसे बेचने का आई गेट अ कमीशन ऑफ ₹2, मुझे ₹2 कमीशन मिलता है ईच वड़ा पाव पे, हर एक वड़ा पाव पे मुझे ₹2 कमीशन मिलता है. और द मैन रिप्लाइड इनोसेंटली, और वो बहुत ही इनोसेंटली उसको रिप्लाई कर रहा था, तरुण को जवाब दे रहा था. So children, this is enough for today. We'll continue our chapter in our next video. Thank you.